Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision, your biology mentor. Welcome to all of you in this session of NTSC Stage 1. As we all know that NTSC Stage 1 is conducted state-wise, and in today's session we are going to discuss a paper of NTSC Stage 1 2019. Right? So there are questions from science section, and in the science section we have bio section and around 13 to 14 questions every year asked from the biology. So for the NTSC exam, you have to prepare from the syllabus of class 9th and class 10th. Though this exam is conducted for the class 10th, but then the syllabus comprises of both class 9th and class 10th. तो हर बारी हर सेशन में इन द बिगनिंग मैं ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमको NTSC एग्ज़ाम के लिए किस तरह से पढ़ना है और क्या सिलेबस है हमारा फॉर द एग्ज़ाम. Unless and until you will go for the right syllabus for the exam, you won't be able to go for the questions. So please do the chapters which is given in class 9th and class 10th for NTSC exam. ठीक है, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, let's see our question number 1 what it says. Yes, it starts from 127 and finished up till 140, so that means around 14 questions are there in bio section in the NTSC stage 1 2019. So let's read what question number 1 says. In human body temperature control center is, है ना, टेम्परेचर आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. I got the answer. Many of you are writing the right one, but let's discuss before reaching to the right one. Disha is right, Ishanvi is right, Naman is right. Actually all of you are right. That means you people are studying the subject and that's very good. That's the best part. Okay, let's read the options. Epithalamus, hypothalamus, thalamus and medulla oblongata. तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है सही ऑप्शन क्या है that controls body temperature. ठीक है, तो that controls body temperature is option number 2, that is hypothalamus. hypothalamus के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आया था, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, that which is the master of the master gland. तो master gland की बात करें, it is pituitary gland, and the gland which governs the master gland is the master of master gland, that is hypothalamus. Hypothalamus governs the pituitary gland and it has many functions. One of the function that it controls the body temperature. It acts as thermostat. किसकी तरह काम करता है? It acts as thermostat and that is how it controls body temperature. ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है that is medulla oblongata. इस के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. क्वेश्चन वाज लाइक दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी. तो ध्यान रखना, चाहो तो अपनी नोट्स में लिख भी लो, medulla oblongata controls involuntary actions of the body. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सिलाइवा सीक्रीशन है, ब्रीदिंग है ना, तो डाइजेशन है, दीज आर ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस. यस, that is true. Your nerves are spread throughout your body, है ना. There are the nerves which is spread throughout your body, that is called the peripheral nervous system, that comprises peripheral nervous system. But then this is the organ which is present in your brain. This is one of the part of the brain that controls involuntary action. There are others organs also which is present, but out of these options I am telling you that medulla oblongata is a part of the brain that controls involuntary actions, and many of the time questions are already there in the paper. That's why I am telling you all these things. ठीक है, so please do remember that important point है. question already आपको आ चुका है on this topic. चलिए, very simple, everyone will tell this. Which factor is responsible for greenhouse effect? बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका. Everybody will know this. Carbon dioxide is responsible.
कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन है इसमें, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको उसमें 1 सेकंड लगना है, क्वेश्चन पढ़ते बाद ही ऑप्शंस पढ़ो और आंसर कर दो. एवरीवन इज राइट, यस absolutely everyone is correct. This question is taken from your class 9th topic, that is natural resources. हम एक बार ये भी कैलकुलेट करते हुए चलेंगे in each questions that वो question कहाँ से उठाया हुआ है, whether from class 9th or from class 10th and from which topic, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको NTSC के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट और हमें कैसे पढ़ना है उनको. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देयर इट नीड्स नथिंग, no explanation. Okay, which one of the following element is essential for synthesis of thyroxine hormone? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा मिनरल, कौन सा एलिमेंट ज़रूरी होता है? बिल्कुल ठीक, आप लोग लग रहा है कि बायो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. एवरीवन इज करेक्ट. So it is the iodine which is responsible for the formation of thyroxine hormone, और इसकी deficiency से there is a disease which can occur that is called as goiter. ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट्स में लिख लो अपने, deficiency of the iodine mineral leads to the disease called as goiter. Yes बेटा, absolutely Shaurya, it is goiter that leads, that is a disease caused by the deficiency of goiter, and for the formation of thyroxine hormone this element is needed. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, देयर वाज अ टॉपिक इन क्लास 9th दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सही आंसर कर रहे हो सब? एब्सोल्युटली. तो दैट इज व्हाई आई डिस्कस दैट टॉपिक, बिकॉज इन एवरी ईयर इन NTSC स्टेज 1 एंड इन NTSC स्टेज 2, दोनों ही स्टेजेस में वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम 1 और मे बी 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर फ्रॉम दैट टॉपिक. ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा बहुत जल्दी आंसर कर दोगे. दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है. तो आपने हायरार्की क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम किंगडम, देन इट इज फाइलम. किंगडम फाइलम के बाद क्या आएगा बताओ? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, है ना. तो ये आपको बिल्कुल ऑर्डर में ध्यान रखना है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको ये ऑर्डर मालूम होगा ना, आप अपना बहुत जल्दी बता दोगे. स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सॉन. यू नो टेक्सॉन इज व्हाट? टेक्सॉन इज एनी रैंक और कैटेगरी गिवन इन दी हायरार्की क्लासिफिकेशन. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किंगडम इज अ टेक्सॉन, फाइलम इज अ टेक्सॉन, तो दिस इज अ रैंक और कैटेगरी गिवन इन दी हायरार्की ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज व्हाई आवर आंसर इज स्पीशीज. स्पीशीज टेक्सॉन इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर आपसे पूछते हैं हाईएस्ट टेक्सॉन कौन सा है, हाईएस्ट यूनिट कौन सी है, सो यू विल आंसर किंगडम. ठीक है, ध्यान रखनी है हमें बात, बिल्कुल इसको इन ऑर्डर लर्न करना है हमें. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. स्पीशीज इज अ टेक्सॉन विच इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है. अगर आपने बिगनिंग ऑफ द टॉपिक ही थोड़ा सा पढ़ा होगा, आप बहुत जल्दी इसको आंसर कर दोगे. लेकिन ये टॉपिक, यस बेटा, सेकेंड लास्ट वॉज जीनस. सेकेंड लास्ट वॉज जीनस. यू आर आस्किंग इन द हायरार्की ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ना बेटा? इट इज जीनस. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें ना आपसे एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आवर साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमंस, सो दैट इज होमो सेपियंस, है ना. तो आपसे सिंपल क्या पूछ लेंगे, ये दिस इज ऑल्सो वी स्टार्टेड इन क्लास 9th कि व्हाट डज होमो रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज सेपियंस रिप्रेजेंट. तो अगर होमो की बात करूं, इट रिप्रेजेंट जीनस, एंड व्हाट डज सेपियंस रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट स्पीशीज. ठीक है, तो आपसे बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, अगर आपने पढ़ी होगी तो 1 मिनट में इसको आंसर कर दोगे. दैट बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेज द 2 टैक्सॉन्स, दैट इज द नंबर 1 इज जीनस एंड द अदर इज द स्पीशीज. इसको हम स्पीशीज भी बोल सकते हैं. इन सम टाइम्स इट मे रिटन एज स्पेसिफिक एपिथेट. तो लिख लो नोट्स में अपने. ठीक है, स्पीशीज भी लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में, स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखा हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग. सो एनी साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द 2 टेक्सॉन्स, फर्स्ट इज जीनस एंड द सेकंड इज स्पीशीज. ठीक बात है?
ध्यान रखनी है ये बात. देखो मैंने डेलिबरेटली एक चीज और लिखा है स्क्रीन पे. व्हाट आई हैव रिटन H एज कैपिटल एंड दिस S इज स्मॉल. व्हाई आई मीन ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज दिस इज द रूल. This is the rule of the what? This is the rule of the nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature means naming an individual. किसी भी organism को उसका scientific name देना, that is nomenclature. And that scientific name should be universally accepted. है ना? एक ही नाम होगा, ऐसा नहीं है कि सब लैंग्वेज में अलग अलग होगा. फिर क्या फायदा उसको देने का? भाई एक नाम है. अगर मैं होमो सेपियंस बोल रही हूँ, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टैंड बाय ऑल प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. है ना? तो हर लैंग्वेज में एक ही नाम होगा, दैट इज होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमंस. ठीक है? तो नोमेनक्लेचर में ये रूल है दैट जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल वन upper case and the species always starts with the lower case. So that is why I deliberately wrote in this manner Homo sapiens. So this is one of the rule of nomenclature. We'll discuss later. There are few more rules of the nomenclature and that comes in. That we'll discuss later. Abhi ke liye ye samjho that species is the lowest taxon, smallest unit of classification and kingdom is the highest taxon. चलिए आगे बढ़ते हैं. For next question, what does it says? Let's see. Okay, which one of the following is not a part of female reproductive system in human beings? So with reference to human beings, yes, I got the answer. And this is very good. I love that you people answer such questions. This is a question of class 10th of the topic how do organisms reproduce. है ना? आपका एक topic है class 10th में how do organisms reproduce. वहाँ से ये question उठाया हुआ है. आप लोग ने जितने लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है. देखो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, देन वील मार्क द राइट वन. ओवरी की बात कर लेते हैं. ओवरी क्या है? ओवरीज आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स. है ना? तो आपसे तो पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. हर्षित एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, सही आंसर है आपका. तो ओवरीज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा. यूटरस इज एक्चुअली अगेन अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल्स. है ना? तो यूटरस को वी ऑल्सो से एज वोम बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है? तो यहीं पे जाके द बेबी इज गोइंग टू डेवलप इन द मदर्स वूम एंड दैट इज कॉल्ड एज द यूटरस. ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स. इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है. क्या आया है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. है ना? इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? इट इज फैलोपियन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी अ टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड. दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ध्यान रखनी है ये बात हमको. ठीक है? फैलोपियन ट्यूब्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट्स. बिल्कुल सही बात, आई गेस किसी ने बोला यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बोला. fallopian tubes are also called as oviducts. One more name is there, you people didn't heard of it, that is called as salpinx. है ना? salpinx को भी एक दूसरा नाम है fallopian tubes का. You can write in your notebooks. और अगर कभी भी आपसे पूछें what is salpingitis, which of the following is the condition of salpingitis, है ना? तो आप क्या आंसर करोगे? It is in the option, it must be given inflammation of fallopian tubes. It must be given in the option, मतलब fallopian tubes का inflammation को हम क्या बोलते हैं? salpingitis, because the other name of the fallopian tube is salpingitis. ठीक बात है? समझ आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग है? So अब ये तीनों ऑप्शन से तो हमें ये पता चल गया, because all these three parts are the parts of the female reproductive system. तो बट ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या बनेगा? vas deferens. ठीक है? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. इट इज द पार्ट विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द पोजिशन ऑफ दिस ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ इट्स रिक्वायर्ड प्लेस और द टारगेट प्लेस. है ना? तो ये कंडक्टिंग पाथ है. vas deferens इज द कंडक्टिंग पाथ ऑफ द स्पर्म, दैट इज द मेल गैमीट. ठीक है? तो फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन, नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
चलिए आगे बढ़ लेते हैं. मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स अकर्स इन विच सेल्यूलर ऑर्गेनेली. है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल एंजाइम्स कहाँ बनेंगे? लाइसोजाइम में, सॉरी लाइसोसोम्स में. यस, बिल्कुल सही बात, सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इट इज द आंसर इज लाइसोसोम. बिकॉज व्हाई इट इज सो, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ द एंजाइम. बिल्कुल सही बात, everyone is correct. That is called as hydrolytic enzymes. ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कई बार क्वेश्चन में वन अदर नेम इज गिवन एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलेसिस. आप लोगों ने इस टर्म को नहीं पढ़ा होगा बिकॉज आपकी क्लास 9th टॉपिक सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें it was given like this only, that the lysosomes have hydrolytic enzymes. It helps in the breakdown of certain molecules with the help of the hydrolytic enzymes present in the lysosomes. ठीक है, लेकिन इसको हम acid hydrolysis भी बोलते हैं. So if in the option is given like this, you assume that this is the hydrolytic enzymes present in lysosome. ठीक है, बाकियों के बारे में मालूम है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ATP. It provides the ATP to the cell. Power house of the cell है ना. देखो ये क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में, लास्ट सेशन में भी आई गेस आई हैव डिस्कस सच क्वेश्चन इन आस्क्ड इन सम ईयर ऑफ द एनटीएससी स्टेज 1. तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं. फॉर एग्जांपल सेल से क्वेश्चन आपके आने हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, अभी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन से पहले. अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है. तो जो बेसिक्स हैं आपके क्लास 10th और क्लास 9th के, उनको दिमाग में अच्छे से रखो क्योंकि स्टेज 1 में द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. वंस यू क्लियर्ड स्टेज 1, होप सो you all will clear NTSC stage 1. Keep your finger crossed, right? And once you cleared stage 1, when you reach to stage 2, तब आपको डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बहुत अच्छा मिलेगा. तभी कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ा होगा. तो इसलिए पढ़ाई अभी से शुरू कर दो. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते. क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, दी वन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैन प्रिपेयर देयर फूड, हेंस कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. गोल्जी बॉडी में क्या होता है? जो भी चीजें ईआर में बनती हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं, लाइक प्रोटीन्स, लाइक लिपिड्स, तो उनका मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? गोल्जी एपैरेटस में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो इन तीनों में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते. एंजाइम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लाइसोसोम में. सो प्लीज डू लर्न दैट. लाइसोसोम पे ना कई बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग. वन सच क्वेश्चन वॉज देयर इन द एग्जाम एंड द आंसर वॉज लाइसोसोम. ठीक है, स्वीपर ऑफ द सेल, लाइसोसोम. कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस सेल ऑर्गेनेली. प्लीज डू लर्न दैट. चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार, ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं. यस, दक्ष, अर्जित, अखिल, हर्षित, शौर्य, तनय, निखिल, एवरीवन इज राइट. आलिश, यू आर आल्सो राइट. सृष्टि, आप सब बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात. अच्छा चलो, तुम लोग ने मुझे इसका आंसर बता दिया. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, नेम द प्रोटोजोवन. This is actually, the answer is protozoan. This is a protozoal disease. Kala azar is caused by one of the protozoan. So any one of you, can you name the protozoan which is responsible for the causes? Yeah, absolutely. I love that. Nikhil, Ishanvi, absolutely correct. The protozoan which is responsible for this disease is Leishmania, and that is complete as species as Donavni. ठीक है, लेशमानिया डोनावनी is the causative agent of the disease, that is Kala Azar, and this is one of the protozoa, hence the disease is protozoan disease. ठीक है, ध्यान रखना इसको, आप ये नोट कर सकते हो नाम, one of the causative agent. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट. है ना, कौन से प्लांट में? स्ट्रेट अवे वाटरमेलन इज द प्लांट जिसमें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाकी सब में ऑब्वियसली है. रेस्ट इज बाइसेक्सुअल.
तो कहीं नहीं जाना, बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट नहीं लगाना, स्ट्रेट अवे पूछ रहे हैं आपसे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. वाटरमेलन इज एक्चुअली हैविंग द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. अब देखो तुम लोगों को पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज यू पीपल लर्न बायो वेरी वेल. बहुत अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो, और आंसर भी फिर बहुत अच्छे से करते हो, है ना. तो देखो, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं. इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, है ना, देन कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स में कौन से आ गए ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स आ गए. कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं. कंज्यूमर्स की बात अगर करें तो कंज्यूमर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स. आपने जरूर पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. ये सब जरूर आपने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है. सो बेसिकली क्वेश्चन में वही तो दिया हुआ है हमारा, प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं. तो ऑल ऑफ द अबव एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 9th सिलेबस. ठीक है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज में कई बार क्वेश्चन, अभी दूसरा क्वेश्चन है ये नेचुरल रिसोर्सेज से. एक हमने कौन सा पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, इफ यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 128 विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है हमें फॉर द एग्जाम. आगे आ जाते हैं. Which one of the following substance is changed into amino acid after digestion? Very simple. It couldn't be more than simple than this. इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता. Everyone is correct. है ना. तो आपको इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इनके मोनोमर्स क्या है. बहुत ज़्यादा हमें नहीं जानना है. सब सही आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड बेटा. तो आपको ये बताना है कि इनके डाइजेशन के बाद इनके मोनोमर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये. तो आपका क्लास 10th टॉपिक 1 लाइफ प्रोसेसेस, सब टॉपिक 1 दैट इज एनिमल न्यूट्रिशन. वहाँ पे आपको ये ज़रूर बताया गया होगा, आपकी टीचर्स ने, आपने ज़रूर पढ़ी होगी ये सारी चीज़ें, कि प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या है, अमाइनो एसिड. आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया, बट लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस एज वेल, दैट व्हेन द अदर मायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन देन इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच मोनोमर्स, है ना. कार्ब्स क्या बनाएंगे, दे आर डिफरेंट कार्ब्स प्रेजेंट. ग्लूकोज बन सकता है, ठीक है, फ्रुक्टोज बन सकता है, लैक्टोज बन सकता है. यस बेटा, यू आस्किंग समथिंग. Yes, Akhil? Yes, absolutely. Sucrose बन सकता है. So there are many carbs which could be formed by the breakdown of carbohydrates. The monomers are glucose, fructose, lactose, sucrose. These are either monosaccharide or disaccharide. Monosaccharide means, yes, Samriddhi, you are asking something बेटा. हाँ बिल्कुल, maltose तो beginning में ही बन जाएगा. If you have started the digestion takes place in your mouth, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे starch, the complex sugar converts into a simple sugar, that is maltose, है ना, with the help of the enzyme. कौन सा enzyme होता है बताओ, which enzyme is here? Salivary amylase, which is present in your saliva and which is secreted by the salivary glands present in your buccal cavity, right? इसी enzyme को हम और क्या बोलते हैं, टायलिन. ये भी बताया होगा मैंने आपको जरूर. ठीक है, so starch convert into maltose in your mouth with the presence of the enzyme that is salivary amylase and the pH over here. देखो हर enzyme की ना एक optimum conditions होती हैं, उसको pH temperature अगर उसकी optimum condition का नहीं मिलेगा, it was not going to act on the nutrient. तो यहाँ पे pH कितना required होता है, 6.8.
ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात, यहाँ पे pH रिक्वायर्ड इज 6.8। ठीक है, तो ये इसका एक ऑप्टिमम pH है जिसमें ये एंजाइम काम करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो दीज आर द वेरियस मोनोमर्स ऑफ द कार्ब्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। इसकी बात कर लेते हैं, फैट्स स्क्रिप्ट टूटता है तो इसकी यूनिट्स क्या है, ईदर इट विल बी कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड्स, है ना, और वन ऑफ द ईस्टर दैट इज ग्लिसरॉल, तो इसका ये इसमें टूटेगा। न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, दो टाइप के, डीएनए आरएनए, है ना। तो डीएनए आरएनए के कंपोनेंट्स क्या है, इट इज पेंटोज शुगर। देखो ये लिख लेना अपने नोट्स में, आपसे अभी प्रोटीन का पूछा है, यू नेवर नो, नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्लास में आपका किसी और का मोनोमर पूछ सकते हैं, तो अगर आपको मालूम होगा आप बहुत जल्दी आंसर कर दोगे एंड यू विल स्कोर द मार्क्स। सो पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, एंड द फॉस्फेट ग्रुप दैट इज फॉस्फोरिक एसिड होता है। यहाँ पे एक कहानी और बताना चाहती हूँ आपको। एक तो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड्स का नेचर एसिडिक होता है, नंबर 1। नंबर 2, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, लिख लो नोट में अपने ये बात भी, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अडीनाइन नंबर 1, एब्सोल्युटली, ग्वानिन नंबर 2, cytosine, then thymine, and one more, last one, uracil। ठीक है, 5 टाइप के, दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट, बट ये आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी कहानी, दैट आउट ऑफ 5, 4 आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, वेदर इट इज डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इन 5 में से 4 प्रेजेंट होंगे। अब एक कहानी और आपको ध्यान रखनी है, अडीनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, दिस इज प्रेजेंट इन डीएनए। प्लीज डू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, अडीनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इन केस ऑफ आरएनए, दिस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो यूरासिल किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में। थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। तो इस पे ये क्योंकि डिफरेंट बात है, दिस एक्चुअली पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सिंपल ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, सो योर आंसर विल बी क्या होगा। इफ आई आस्क you name the nitrogenous base, if I ask you which of the following among these 5 nitrogenous base is not present in DNA, तब क्या करोगे आंसर, यूरासिल, एब्सोल्युटली, है ना। अभी मैंने आपको बताया ना, अडीनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, दीज 4 आर प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए बिकॉज थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए न्यूक्लिक एसिड। So please note down in your notebooks, this is all important, can be asked in exam. So proteins का monomer is amino acid, with the digestion or the breakdown of proteins, amino acids are formed. So our correct option is option number 1. इसी तरीके से आपसे next paper में may be asked the different monomers of the biomacromolecules, so please do learn accordingly. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? These are very interesting questions, हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है तभी जब आपको आंसर्स मालूम हो। ठीक है, जहाँ आंसर्स नहीं मालूम वही गड़बड़ी हो गई। तो आंसर हमें कब मालूम होंगे, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। दक्ष ने आंसर कर दिया ओके, दक्ष, अखिल, हर्षित, रिद्धि, दिशा, शौर्या, एलिश, समृद्धि, सब ठीक बोल रहे हो। लेट्स सी, ठीक बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। आई वुड से लाइक दिस आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन, सोर्स ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज, तुम लोगों ने आंसर दिया है 1, कहां से पढ़ा तुम लोगों ने 1 आंसर इसको, पेनिसिलिन इज अ वंडर ड्रग। अभी पीछे भी कहीं क्वेश्चन था, आई गेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, पेनिसिलिन को हम वंडर ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने सबने 1 आंसर किया है, आई डोंट नो कहां से पढ़ा तुम लोगों ने। यस बेटा, दिशा व्हाट यू आस्किंग, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, तू क्या बोल रही है, जोर से बोल।
वाई डू वी फॉल इल चैप्टर, बिल्कुल ठीक बात. क्लास 9th वाई डू वी फॉल इल, बिल्कुल ठीक है बेटा. लेकिन आप लोगों ने इसका आंसर मुझे गलत दिया, ऑल ऑफ यू. बैक्टीरिया इज नॉट द आंसर. सिद्धांत, नाउ सिद्धांत इज राइट एक्चुअली, सिद्धांत इज राइट. देखो पेनिसिलिन इज अ वंडर ड्रग obtained from the organism that is called as penicillium, है ना. and this penicillium is one of the fungi. yes Alice, you're right now this time. तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, fungi. penicillin is a wonder drug used to treat, है ना, different diseases and it is obtained from the one of the fungi and that is penicillium. ठीक है, ध्यान रखना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना कॉजेटिव एजेंट्स के और इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. तो आपने इतना डिटेल में आई डोंट थिंक सो क्लास 9th में पढ़ा होगा, बट अगर एनटीएससी के लिए पढ़ोगे तो ये चीज़ ज़रूर आप पढ़ोगे. ठीक है, लेकिन आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी में इट इज़ नॉट गिवन. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाए बेटा. वंडर ड्रग बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वंडर ड्रग. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टेस्टोस्टेरोन इज वन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन. तो अगर आपको ये बात मालूम है, मुझे अभी तक एक भी आंसर नहीं मिला आपकी क्लास से. दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपने क्लास 10th में जो टॉपिक पढ़ा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है. एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी बाहर जाओगे तो आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा. नो, यू आर रॉन्ग शौर्या, समृद्धि, दिस इज नॉट द आंसर. देखो अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन and there is the primary sex organs that is called as testes. Testes is the primary sex organs of the males. ठीक है, ये बात हमें मालूम है, राइट. तो टेस्टिस में ही there is a cells present. No Rishanvi. Okay, let me continue and giving you the right answer. You are incorrect. Siddhant, you are correct, but I guess that was a guess, right? Daksh and Siddhant. Yes, I know it was a guess. You didn't knew it because जिस तरह से आप लोग आंसर कर रहे हो ना, तो I'm 100% sure you are stick to NCERT only to that topic. थोड़ा सा भी बाहर जाओगे तो एकदम से आपको पता चल जाएगा. देखो टेस्टिस, we know that it is a primary sex organs in males. तो टेस्टिस में आपके there are the cells present adjacent to the tubules. उसको हम क्या बोलते हैं, Leydig cells. These are called as Leydig cells. Here N will not be present. It is only Leydig cells. ठीक है. तो लेडिक सेल्स टेस्टिस का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है किसी भी ऑर्गन का, जहां पर उसका मेन वर्क हो. मेन वर्क क्या है टेस्टिस का, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, है ना. तो टेस्टिस में देयर आर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को सिंगल वन वर्ड में हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है एनटीएससी में जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है. आप यू स्टिक टू एनसीईआरटी, बट 2-3 लाइन्स याद रखो. टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ testis is seminiferous tubule. Why we are calling so? Because this is the site of the formation of the sperm in testis. That is spermatogenesis. ठीक है, तो adjacent to this seminiferous tubules are the Leydig cells present. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जैसे होता है टेस्टिस के अंदर, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड दीज आर एक्चुअली एंडोक्राइन सेल्स. कैसे सेल्स होते हैं ये, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं. अब देखो एंडोक्राइन सेल्स हैं तो हार्मोन्स बनाएंगे, हम जानते हैं ये बात कि एंडोक्राइन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स बनाना, केमिकल सीक्रेशंस को बनाना. तो ये यहाँ पे कौन से सेल्स बनाएंगे, कौन से हार्मोन्स बनाएंगे, एंड्रोजन्स बनाएंगे. एंड्रोजन्स आर दी hormones produced in the male. One of such androgen is testosterone. ठीक है,
तो ये कहानी लिख लो नोटबुक में, काम आएगी आपके एग्जाम के लिए. आई एम रिपीटिंग द सेम. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज seminiferous tubule. And this is the site of the formation of sperm, that is spermatogenesis. Adjacent to seminiferous tubule present are the endocrine cells, which is Leydig cells. These cells produces androgens. One of such androgen is testosterone, which is male sex hormone. ठीक है, कहानी समझ आ गई होगी आपको, आंसर मिल गया हमको. Leydig cell is the answer there where the testosterone hormone is produced. ठीक है, चलो इसके बारे में भी एक एक दो लाइन आप लोग को बता देती हूँ, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. Kupffer cells, Kupffer cells are the macrophages. मैक्रोफेजेस का मतलब होता है, फैज का मतलब समझते हो, फैज का मतलब होता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी, किसी चीज को डाइजेस्ट करना, है ना. मैक्रो मीन्स ह्यूज, बड़ा. तो बेसिकली दिस इज Kupffer cells आर द मैक्रोफेजेस ऑफ योर ऑर्गन लिवर. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिवर में प्रेजेंट होते हैं. तो मैक्रोफेजेस है, यानी कि ये क्या करेंगे? इट एनगल्फ द पैथोजन एंड किल्स द इन्फेक्शन. दैट इज व्हाई दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस. So basically these are the cells, macrophages present in your liver that kills the pathogen and prevents the infection. ठीक है. Granulosa cells की बात कर लेते हैं. This is present in the primary sex organs of the female, that is ovary. Granulosa cells वहीं present होते हैं. It secrete large amount of female sex hormone that is called as estrogen. This is one of the female sex hormone जो कि granulosa cells बनाते हैं. ठीक है. फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है ओवरी, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल वेरी मच, कुछ थोड़ा सा सरफेस लेवल बता रही हूँ आपको, सो दैट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आस्क्ड यू कैन आंसर दैट इन योर NTSC स्टेज 1 एग्जाम. ठीक है. So granulosa cells are the part of the ovary that secrete the female sex hormone, that is estrogen. आई गेस समझ आ रहा है सबको? ओके, दिस इज फ्रॉम क्लास 10th, है ना. टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो आपकी क्लास 10th में ये तीनों ही टर्म्स आपने नहीं पढ़े होंगे, आई गेस. पढ़े हैं टर्म्स? नहीं पढ़े हैं ये तीनों टर्म्स आई गेस आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आपकी क्लास 10th NCERT में कहीं नहीं दिया हुआ है. अगर आप सिर्फ स्टिक टू NCERT हो तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के, जो कि स्टेज 1 का क्वेश्चन है, समझ जाओ कि सिर्फ NCERT नहीं पढ़नी हमने NTSC एग्जाम के लिए, थोड़ा सा बाहर जाना है. मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा हमको बाहर जाना है, लेकिन हाँ, इट नीड्स अ लिटिल मोर नॉलेज अबव NCERT, बियॉन्ड NCERT. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स आर. अब देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मुझे आंसर गलत मिल गया, दक्ष बेटा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. यस, क्यों? क्योंकि यू मेक इट इन हरी. आई नो तुमको मालूम है इसका आंसर, लेकिन तुमने जल्दी में. यस, लेकिन दक्ष ने मुझे गलत इसका आंसर दिया, एंड आई एम श्योर दक्ष को अभी अफसोस हो रहा होगा कि उसने जल्दी में इसका आंसर दिया, इसलिए गलत दिया मुझे. राइट दक्ष? वाई? बिकॉज ये क्वेश्चन है ही ऐसा कि आपको एकदम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए. अगर आपने सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे आज पहुंच गए, आपने ये नहीं देखा, यू डिडंट गो थ्रू दैट. क्रोमोसोम्स आर 46 इन ह्यूमन बींग्स, एब्सोल्युटली. तो आप सीधे क्या करोगे, और 46 लिखा भी ऑप्शन में, लकीली देयर इज एन ऑप्शन दैट इज 46, तो आप सीधे इसको मार्क कर दोगे. पर हमसे क्या पूछा है? सेक्स क्रोमोसोम. तो वी नो दे आर 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो अगर मेल्स की बात करें इट इज XY, और फीमेल्स की बात करें इट इज XX. सो दे आर ओनली 2 सेक्स क्रोमोसोम अमंग द 46 क्रोमोसोम इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत ही सिली मिस्टेक होगी अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आते हो तो. बिकॉज आई नो एवरी वन इन द क्लास नोज दिस, दैट द आंसर मस्ट बी 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम, नॉट द क्रोमोसोम्स. ठीक है, समझ आ रही है बात? अगेन देखो, सेल, कितनी बार इस टॉपिक को हम देखो, यही मैं बता रही थी तुम लोगों को इन द बिगनिंग कि लाइसोसोम पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और द सेम क्वेश्चन इज देयर. इट वाज
यस दीक्षा क्या बोल रही बेटा? वही मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? है ना. अब कुछ बिगेर डिस्कशन की हमें सब सही बोल रहे हो आप लोग. एवरीवन इज करेक्ट. लाइजोसोम. तो सेल पे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. सेल पे, लाइजोसोम पे, राइबोसोम्स पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है ये एनटीएससी के. whether it is stage 1 और stage 2. stage 1 में थोड़ा सा easy पूछ लेते हैं, stage 2 में थोड़ा सा difficulty level high कर देते हैं. that is the difference between the two. otherwise cell topic is the favorite topic of NTSC exam. तो I request you all that कि stage अगर आप NTSC के लिए prepare कर रहे हो तो टॉपिक्स सेल है जैसे आपका. एंड क्लास 10th की 9th की बात कर लेते हैं. सेल टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं. यस क्या बोल रहा है बेटा? समझ नहीं आया मुझे. यू सेइंग समथिंग? ओके, तो सेल इज द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द एनटीएससी एग्जाम. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस? अभी हमने देखा 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर. Natural resources from class 9th, again important topic. And you know diseases and its causative agent, this is always important. आपसे specifically नहीं पूछेंगे that अगर किसी कोई फंजाई या कोई बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है तो आपसे सीधे बैक्टीरिया फंजाई पूछेंगे. आपको उसका नाम नहीं पूछेंगे that which bacteria causes this disease. तो एटलीस्ट आपको इतना मालूम होना चाहिए that these are bacterial diseases, these are fungal diseases, these are protozoan diseases, these are viral diseases. एटलीस्ट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. You don't have to specify the specific causative agent. But then about the different types of disease you must be aware of. Questions can be asked from that. Yes, beta? हाँ बच्चे. हाँ बिल्कुल आ सकता है. बहुत सिंपल है वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्ट. भाई 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं. 70S होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं. 70S कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए. दीज आर प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल. 80S आर प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल. है ना. तो उसकी लोकेशन पे, साइट पे, टाइप्स पे बिल्कुल आ सकता है. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली सेल की कौन सी है? राइबोसोम. ओनली स्ट्रक्चर विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था आई गेस. Ribosomes. Many of the questions can be framed on ribosomes. Proteins factory are ribosomes. Site of ribosomes बहुत सारी होती है सेल में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको साइटोप्लाज्म में तो फ्रीली सस्पेंडेड मिल जाएगा. राइबोसोम्स आपको और कहाँ मिल जाएंगे? आपको यस अटैच टू ER मिल जाएंगी. और इसी बेसिस पे आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, स्मूथ ER एंड रफ ER. सही बात है ना. राइबोसोम्स पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में 70S एंड 80S, व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर? डिस्कस किया था हमने ये. एंड स्वेटबर्ग्स यूनिट. अब देखो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है मोर और लेस इट इज नॉट गिवन इन NCERT क्लास 9th, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ दीज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड एंड आस्क्ड इन NT एग्जाम ऑलरेडी. पहले से ही पूछे हुए क्वेश्चन जो कि आपकी NCERT में नहीं गिवन है. तो हम थोड़ा सा बाहर ज़रूर जाएंगे अगर हमको NTSC का एग्ज़ाम देना है. तो सिर्फ NCERT पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको. एंड आई गेस दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स बिकॉज आई टीच बायोलॉजी. तो आई कैन से वेरी मच अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट बायो दैट स्टिक टू NCERT इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर NTSC एग्जाम. ठीक बात है. यस नहीं ये दिस इज नॉट एडिटिव वैल्यू. दिस इज नॉट एडिटिव वैल्यू. हम जब 70 को देखो ना, जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स आर इन प्रेजेंट इन दी सब यूनिट्स. है ना. एक हमारी ये यूनिट हो गई, एक हमारी ये यूनिट हो गई. ठीक है. एंड दिस इज द अनदर टाइप, दिस इज द अनदर टाइप. तो ये मान लेते हैं हम 70S है और ये मान लेते हैं हमारी 80S है. तो अगर हम इसकी यूनिट्स को ब्रेक करेंगे तो इसको हम ब्रेक इस फॉर्म में नहीं कर रहे हैं कि 70S है तो 50 और 20 होगा. स्मॉल लार्जर यूनिट इज 50S एंड स्मॉलर यूनिट इज 30S. ठीक है. सेम इज द केस हियर, 60S एंड 40S. तो इसकी एडिटिव वैल्यू नहीं है ये, ना ही इसकी एडिटिव वैल्यू है 80S. ठीक है. ये क्यों होते हैं इसको जानने के लिए यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स. दैट वी विल डिस्कस इन अ पर्टिकुलर सेशन.
बात समझ में आ रही है? दिस 70s और 80s इज नॉट द एडिटिव वैल्यू ऑफ दीज टू. बस आपको ध्यान ये रखना है, इसके बेसिस पे दिस इज द स्मॉलर यूनिट एंड दिस इज द लार्जर यूनिट इन 70s. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलर यूनिट रिप्रेजेंट इन 70s. सो एक ऑप्शन में 30s मस्ट बी गिवन. ठीक है, सेम इज द केस 40s इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ 80s, 60s इज द लार्जर यूनिट ऑफ 80s. तो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. ठीक है, तो दिस इज 17 80s आर नॉट द एडिटिव वैल्यू ऑफ दी सब यूनिट्स. ध्यान रखनी है बातें में. ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दीज यूनिट्स आर एक्चुअली ओनली क्लब टुगेदर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये बात ध्यान रखनी है. हम क्यों नॉन मेम्ब्रेन्स बोल रहे हैं? अगर मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर होगा तो यूनिट्स तो साथ में रहेंगी, पर ये यूनिट साथ में नहीं रहती हैं. यूनिट्स बीन स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, ये साथ में कब आती है यूनिट्स? व्हेन इट इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन्स. ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे आपकी स्टेज 1 में. हाँ, स्टेज 2 में जरूर पूछ सकते हैं आपसे. आपके स्टेज 1 में इतनी जो मैंने आपको पहले बताई, जैसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइट क्योंकि काफ़ी जगह प्रेजेंट होता है. एक क्वेश्चन मैंने आपसे आई गेस किसी सेशन में डिस्कस किया होगा, विच ऑफ द ऑर्गेनली प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनली. तो क्या आंसर होगा आपका? ऑर्गेनली प्रेजेंट. यस हर्षित, ऑर्गेनल. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट बेटा. क्या बोल रहा है बच्चे? ऑर्गेनल इनसाइड द सेल ऑर्गेनल. क्या आंसर होगा इसका? राइबोसोम. ठीक है, बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल. सही बात है. ठीक है, तो हमें ये चैप्टर अकॉर्डिंगली पढ़ना है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एनटीएससी स्टेज 1 के लिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, सो आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. So that's all for today's class, right? In the upcoming session, what you want to discuss? Another paper or some information about the topics? Just for example, I would like to teach you diversity living. Yes, diversity. Yes, because I know आपका वो topic जो था class 9 से हटा दिया गया था due to this pandemic, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और आगे आएंगे भी. तो व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल नॉट डिस्कस विद द पेपर. व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस विद द टॉपिक दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेक्स्ट सेशन. इज दिस ओके टू ऑल ऑफ यू? चलो, तो in the next session we are going to discuss the topic diversity in living organisms. So stay tuned. I hope you all like the video. And if this video, this information is any way fruitful to you, to all of you, please do like the video and share with your friends and subscribe it, so that whenever we upload any video, you'll get the notification, and that will help you a lot. So that's all for today's session. Goodbye. Thank you all.